Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to tell you about the very important things related to WBJ 23 counseling. Okay? So if you are the candidates of WBJ 2023, then this video gonna very informative to you, because in this video I will tell you complete detail about the WBJ 2023 counseling in one video. Okay? आपको इस वीडियो में complete detail बताऊंगा कि what are the important point that you should know before going to the counseling guys. Okay? Because you know guys, in this day YouTube पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, बट कोई भी एक कंप्लीट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया. ओके, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट वीडियो रिलेटेड टू डब्ल्यूबीजे काउंसलिंग. कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने राउंड होगा, किस तरह से करना है, कितना फी लगेगा. सो बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स में प्रोवाइड किया जाएगा. बिसाइड दैट सम इंपॉर्टेंट टिप्स मैं वीडियो के बीच में बात करूँगा. ओके, सो हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए. ओके, सो फॉर दैट आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए. ओके, एंड आफ्टर दैट आई एम promising you that you will have no any confusion related to WBJ counseling. Okay, so before moving to the video guys, if you are new here to my channel, must support my channel and you can join my Telegram group or WhatsApp group for getting the any updates related to WBJ counseling. Okay, strong chance है डेट WBJ counseling का भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा. Okay, so let us come to the important point, that is the WBJ counseling. So friend, this is the notification that is basically released by the WBJ board yesterday, that is on 14 July 2023. So what are the important point that they mentioned? First of all, very important things that for participating in the WBJ counseling, you must have a valid WBJ or JEE main rank card. Okay, so that this is very important things that you should know. Coming to other important point that guys, that there will be only one combined counseling for both WBJ 2023 as well as JEE main 2023 candidates. Okay, सो प्रीवियसली होता था 2022-2021 में दैट WBJ के लिए अलग काउंसलिंग होता था, उसको हम लोग कहते थे फेज 1 काउंसलिंग. और जो जेई मेन कैंडिडेट्स है वो अगर आना चाहते हैं, बेसिकली दे वांट टू टेक एडमिशन टू WBJ कॉलेज, देन फेज 2 काउंसलिंग होता था. ओके, बट दिस ईयर फेज 1 फेज 2 को कंबाइन कर दिया गया. ओके, एंड देयर विल बी अ सिंगल काउंसलिंग. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट गाइस. ओके, coming to later very important point that there will be 3 round of counseling. First allotment, second is accreditation and third is mop-up round. Okay, बात करते हैं आपको very important thing that registration is allowed only at the beginning of round 1 and mop-up round. Okay, so अगर आपको registration करना है, means simply you want to participate in the WBJ counseling, then you have to do, it is compulsory to do registration in round 1. एंड इफ यू बेसिकली बाय चांस अगर फेल आप हो गए राउंड 1 में, देन यू कैन ऑप्ट गो फॉर द मॉप अप राउंड. ओके, सो यही 2 चांस है आपको रजिस्ट्रेशन करने को. राउंड 2 में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, रिमेंबर गाइस. ओके, क्योंकि बहुत सारा कॉमेडी काउंसलिंग अदर काउंसलिंग होता है कि रजिस्ट्रेशन आप बाद में भी कर सकते हैं. ओके, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. ओके, coming to next very important thing that the board will not convert deserve any vacant seat in any reserve category. Okay, ये बहुत अच्छा मुझे लगा. होगा क्योंकि पहले होता था कि कोई अगर सीट वगैरह बची गया तो उसको कन्वर्ट किया जाता था जनरल कैंडिडेट्स, बट इस ईयर WBJ बोर्ड ने डिसाइड किया कि कोई भी जो TFW कोटा सीट है या SC/ST OBC सीट है उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा जनरल कैंडिडेट्स में. ओके, सो जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है. ओके, so let us come to next important point 2.0, that is the registration. Okay, so first of all guys, for doing the WBJ counseling you have to do registration. Okay, by paying the fee that is 500. Okay, in the first round. Okay, so first round में आपको 500 fee पे करके registration करना होगा. where you will provide, means where you have to provide personal detail, academic detail, bank detail. Okay, आप bank detail remember करें, bank detail, personal detail ये सब बहुत ही ध्यान से फिलअप करना है, ध्यान से सब कुछ देना. बिकॉज एक भी आप गड़बड़ किए देन स्ट्रॉन्ग चांस दैट यू मे फेल टू डू काउंसलिंग, और आपको कोई कॉलेज अलॉट भी होगा देन यू मे नॉट गेट एनी कॉलेज. ओके, बेसिकली आपके साथ आपको एडमिशन उसमें नहीं मिलेगा. ओके, सो रिमेंबर टू डू ऑल दैट थिंग्स वेरी केयरफुली. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, दीज आर द डिटेल दैट यू हैव टू गिव. पासिंग मार्क्स देना होगा, टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स इन इंग्लिश 10th. ओके, beside that you have to give passing full marks of 10 marks in class 12th standard, and third point that passing your total marks of 10 marks in class 12th standard, physics, chemistry, math along with chemistry. ये सब अगर कोई आपका कंप्यूटर साइंस या अदर सब्जेक्ट में सब बेसिकली आपको डिटेल प्रोवाइड करना होगा क्लास 12th स्टेटस. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्ड दैट ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, नो प्रोविजन टू मेक एनी करेक्शन एडिटिंग आफ्टर फाइनल सबमिशन. सो WBJ बोर्ड ये जो कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता. ओके, कोई भी एडिटिंग का आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप फिर से एडिट कर सकते हैं. ओके, क्योंकि बहुत सारा काउंसलिंग कॉमेडी के हो गया, जेईई मेन काउंसलिंग जो सब एडिट करने का ऑप्शन देते हैं, बट अगर एक बार आप इसमें गलती करती हैं तो आप आगे नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर द बेसिकली वेरियस ट्रैप बेसिकली डूइंग बाय द WBJ बोर्ड. ओके, जो कि ये सब सही नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू मी, बट जो रूल है वही रूल है, यू हैव टू नोट दैट ऑल दैट थिंग्स. ओके, coming to other important point that TFW seats are shown as separate choice for every institute and for every branch wherever applicable. Okay, so जब भी आप WBJ काउंसलिंग शुरू होगा तो ऐसे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा किस तरह से फिलअप करना है, अदर इंपॉर्टेंट नहीं. बट यहाँ पर आप समझ लें कि TFW अगर आप कैंडिडेट से TFW सीट्स सेपरेट से होगा एंड नॉन TFW कैंडिडेट सेपरेट से होगा. ओके, सो आप दोनों भी फिलअप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप जिस तरह से प्रायोरिटी देंगे. ओके, आई विल सजेस्ट यू टू गिव
TFW सीट्स अब ओके, आप TFW सीट अगर लेना चाहते हैं देन आपको ऊपर देना होगा प्रायोरिटी लिस्ट में, नहीं लेना चाहते नीचे देंगे. सो दे आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नोट स्पेशली फॉर द TFW कैंडिडेट्स. Coming to next very important point, this is very important thing guys. Okay, if you have a low WBJ rank, another important thing, then you should give more number of choice. अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओके, if you have a good WBJ rank then you can give just 10 to 15 choices that is appropriate for you. Okay, so अगर आपको ये सब कंफ्यूजन हो रहा है कि कितने कॉलेज दूं, कितने में मेरा अच्छा रैंक मीन्स कितने में मेरा अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपको ये कंफ्यूजन है, आपको कोई आइडिया नहीं WBJ काउंसलिंग, देन डोंट टेक रिस्क. यू कैन फिल अप आवर फॉर्म. ओके, आप पेड काउंसलिंग फॉर्म आप प्रोवाइड कर फिलअप कर सकते हैं. आपको मैं कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा फ्रॉम चूजिंग योर कॉलेज टू गेटिंग इनटू द कॉलेज टू, एंड आफ्टर दैट टू मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारा सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिसाइड्स WBJ काउंसलिंग टू. ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड है देन आप हमारे काउंसलिंग फॉर्म को ही फिलअप कर सकते हैं. जस्ट 199 चार्ज है इफ यू आर इंटरेस्टेड. ओके, रिमेंबर गाइस, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर करियर, सो डोंट टेक रिस्क. आप मेरे से नहीं, जिनसे हो, जिनको आइडिया है उनसे आप करवाएं, दैट इज गुड. अगर आपको आइडिया नहीं है तो इफ यू आर कंफर्टेबल दैट मैं कर सकता हूँ तो कर सकते हैं. ओके, देन गाइस देयर विल बी अ मॉक सीट अलॉटमेंट. दिस इज द न्यू थिंग दैट इज गुड अकॉर्डिंग टू मी. ओके, मॉक सीट अलॉटमेंट भी आपको दिया जाएगा. मीन्स आपको एक मॉक मीन्स होता है बेसिकली नकली, और कह सकते हैं एक फेक, और मीन्स कह सकते हैं एक आइडिया आपको मिला कि मुझको जिस तरह से मैंने प्रायोरिटी लिस्ट भरा कौन सा कॉलेज मिल सकता है. ओके, सो दिस इज द मॉक सीट अलॉटमेंट आपको जारी किया जाएगा. ओके, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू टेक एडवांटेज टू मॉक सीट अलॉटमेंट, प्रायोरिटाइज देयर लिस्ट. ओके, सो आप अपना लिस्ट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. अगर आपको मॉक अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द डेंजर साइन, सो आई हैव टू ऐड मोर ऑप्शन. अदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको इंपॉर्टेंट है. देन चॉइस लॉकिंग गाइस, कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है. चॉइस लॉकिंग अगर आप खुद से नहीं करें, ओके, देन इट विल ऑटोमेटिकली लॉक. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो. और आप कोशिश करें कि एक चॉइस लॉकिंग का एक प्रिंट आउट ले ले, दैट इज गुड फॉर यू इन फर्दर. ओके, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए. रिमेंबर गाइस, चॉइस लॉकिंग खुद से करने से पहले 4 बार 5 बार, मैं कहता हूँ 10 बार आप मिला ले कि सब कुछ सही है कि नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट में सही से दिया कि नहीं, मैंने कॉलेज सही से दिया नहीं. सो दे आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, दैट राउंड 1 अलॉटमेंट. ओके, सो आप जब चॉइस फिलिंग कर देंगे, सब कुछ चॉइस लॉकिंग हो जाए, देन आपको राउंड 1 अलॉटमेंट आ जाएगा एक पर्टिकुलर डेट को. ओके, अच्छा डेट तो रिलीज नहीं किया, बट जैसे रिलीज आएगा आई विल प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट डिटेल. ओके, सो राउंड 1 अलॉटमेंट मिलेगा वेयर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया देन यू हैव टू पे द 5000 फी. ओके, थ्रू द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप कर सकते हैं. ओके, एंड यू हैव टू डू ऑल दैट थिंग्स वेरी केयरफुली. ओके, अगर आपने बेसिकली 5000 पे नहीं किया, सीट एक्सेप्ट नहीं किया, देन यू विल बी नॉट कंसिडर फॉर अपग्रेडेशन राउंड एंड यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द काउंसलिंग होल काउंसलिंग प्रोसेस. सो रिमेंबर, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट्स. इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ कॉलेज देन यू हैव टू पे द 5000 fee. That is mandatory. Coming to next very important point, that after downloading the allotment letter you have to go to the college, you have to go for the physical verification with all the documents, जो कि मैं just बताने वाला हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए. ओके, एंड यू हैव टू डू द स्क्रूटनी एंड ऑल दैट थिंग्स. ओके, आपको एक पर्टिकुलर ABC कॉलेज जो कि अलॉट होगा उसमें जाना है. ओके, रिमेंबर गाइस, आई विल सजेस्ट टू गो विद योर पेरेंट्स, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज होता है जो फोर्स भी करते हैं स्टूडेंट्स को कि जबरदस्ती एडमिशन लेने के लिए. ओके, सो रिमेंबर, अगर आपको मीन्स कोई आप बड़े भैया, बड़े दीदी है या पेरेंट्स है, उनके साथ ही जाएं. ओके, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिकॉज दे में प्रेशराइज यू. ओके, और जानना है अगर आपने सब कुछ सही चॉइस फिलिंग वगैरह किया, देन आपको कह देना अपने पेरेंट्स को कि मुझे अपग्रेडेशन करना. ओके, आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन. कोई इतना भी कोई फोर्स करे, डोंट डू दैट थिंग्स. ओके, coming to later important point, that these are the document that you will require. Okay, besides that you have to carry the printed copies of allotment letter and academic or other documents. Okay, means आपको बेसिकली जो allotment letter होगा उसका लेके जाना है कॉपी. Besides that all candidates class 10th admit card, या कोई भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ है, all candidates class 10 मार्कशीट, all candidates class 12 मार्कशीट. ओके, OCI कैंडिडेट्स के लिए OCI सर्टिफिकेट, WBI डोमिसाइल कैंडिडेट्स, यानी आप अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मीन्स अगर आप मीन्स डोमिसाइल कैंडिडेट सिर्फ TFW या कोई स्पेशल कैटेगरी से लेना चाहते हैं एडमिशन, देन यू हैव टू बेसिकली प्रोड्यूस द डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स. ओके, और डोमिसाइल बेसिकली आपको ब्लॉक या वगैरह अदर में SDO के साथ पास बन जाता है. ओके, PW कैंडिडेट्स के लिए PW सर्टिफिकेट, TFW कैंडिडेट्स के लिए TFW सर्टिफिकेट. रिमेंबर गाइस, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं देन ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए. मैं ऑलरेडी बहुत दिन से भी बता रहा हूँ कि ये सब डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लें अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे या मैंने वीडियो ही बनाया था. ओके, सो यू मस्ट हैव दिस डॉक्यूमेंट, अदरवाइज यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम दिट और आप जनरल कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे. ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत सारा आउटकम हो सकता है. अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया देन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फेल्ड. ओके, और आप नेक्स्ट राउंड में अकॉर्डिंग टू दैट आप जनरल कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं अगर आपका सही नहीं रहा है. ओके, अगर आपका वेरिफिकेशन सही हो गया. ओके, एंड इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ फर्स्ट राउंड मींस फर्स्ट चॉइस, अगर आपको कोई 4 कॉलेज दिया, सपोज आपने जादवपुर दिया, हल्दिया दिया, नेताजी दिया, आपको जादवपुर में फर्स्ट जो चॉइस दिया वही मिल गया, देन यू कांट डू द अपग्रेडेशन. ओके, और अगर आपको सेकंड थर्ड या मिला तो आप अपग्रेडेशन फॉर्म भर सकते हैं, यस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन. ओके, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड मिला देन आपको नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरना है. अपग्रेडेशन फॉर्म क्या होता है उसमें डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा. ओके, बट अभी आप समझ लें, अगर आप प्रेजेंट कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, ओके, जो भी अलॉटमेंट हुआ आप चाहते हैं उससे ऊपर मिले, देन यू हैव टू फिल द यस अपग्रेडेशन, अदरवाइज नो अपग्रेडेशन. ओके,
डिटेल में वीडियो बताऊंगा किस तरह से फिलअप करना है, ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। इफ कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन सेकंड राउंड देन ऑलरेडी बता चुका है ये सब लेसन करना। देन गाइस यू विल बी गो टू द राउंड 2 अपग्रेडेशन। आपको कुछ नहीं करना, बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिएगा। वहां पर आपको एक बेसिकली कंफर्मेशन दिया जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया। देन आपको राउंड 2 ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे राउंड 2 में। ओके, अगेन राउंड 2 में आपको जिनको नहीं मिला भाई राउंड 1 में, उनको हो सकता है राउंड 2 में मिल जाए। रिमेंबर गाइस, अगर आपने अच्छा सा चॉइस नहीं किया देन यू विल नॉट गेट एनी कॉलेज। ओके, सो बी केयरफुल इन डूइंग द काउंसलिंग, बी केयरफुल इन सेटिंग द प्रायोरिटी लिस्ट ऑन योर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, the other important thing that you should know later guys, note that if the seat is upgraded early allotment will be cancelled. Okay, suppose आपने कोई ABC कॉलेज में चूज किया था, ओके, आप 2 3 4 किए, ओके, सपोज फर्स्ट में हल्दिया दिए, सपोज में सेकंड में नेताजी, थर्ड में AOT, फोर्थ में अदर कॉलेज दिए। सपोज आपको AOT मिल गया, ओके, उसके नीचे नेताजी, तो आप नेताजी में नहीं जा सकते हैं। ओके, आपको जो AOT मिला तो उसके आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं। ओके, सो रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स। ओके, और अगर आपका एक बार में आप अपग्रेड कर दिए देन जो भी कॉलेज मिला आपको उसको लेना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज बेसिकली कर सकते हैं प्रीवियस जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। ओके, फिर से मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई न्यू कॉलेज अलॉट हुआ देन आपको न्यू कॉलेज में फिर से फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना, और जो प्रीवियस कॉलेज है उसका सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगेन 3 कंसिक्वेंस राउंड 2 अलॉटमेंट हो सकता है कि आपका फर्स्ट चॉइस में हुआ देन इट इज कंपल्सरी टू टेक एडमिशन एंड ऑल डूइंग ऑल दैट थिंग्स स्टफ। ओके, एंड देन सेकंड इज अलॉटमेंट इज अपडेटेड टू सेकंड और लेटर, देन आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ओके, अदरवाइज अगर आप मॉपअप राउंड में गए तो दिस में भी रिस्की। ओके, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि WBJ बोर्ड ने बेसिकली अच्छा ये स्टूडेंट के साथ नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको सेकंड राउंड में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बिसाइड टेकिंग एडमिशन। ओके, अगर आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं दैट मे बी रिस्की। ओके, coming to other important point, these are the not much more basically important for you. Okay, ये सब जो कि मैं ऑलरेडी सभी बता चुका हूँ वो सब आपको ध्यान रखना है। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव सेड दैट अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला राउंड 2 में देन अगेन आपको 5000 फी पे करना होगा। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट मीन्स अगर आप राउंड 1 में आप 5000 फी ऑलरेडी पे कर चुके हैं देन यू हैव टू नॉट डू पेमेंट अगेन। ओके, एंड मेरे पास ये 5000 आपका कहीं जाएगा नहीं। जो भी आपका कॉलेज फी रहेगा पार्टिकुलर ए कॉलेज बी कॉलेज, सपोज आपका 80,000 फी है देन आपको 5000 उसका डिडक्ट करके आपको 75 ही पे करना होगा एडमिशन में। ओके, ये सब आप ध्यान रखिएगा। These are the important things. Let us come to last round, mop-up round. Okay. रिमेंबर गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो, आपको मीन्स सही लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आई विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू यू ड्यूरिंग द काउंसलिंग। ओके, एंड आई एम प्रॉमिसिंग दैट इफ यू विल फॉलो माय चैनल देन यू विल गेट गुड कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ओके, देन गाइस मॉपअप राउंड होता है, देन मॉपअप राउंड पार्टिसिपेशन इज ऑप्शनल। ओके, एंड ऑल कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट पेड सीट एक्सेप्शन फी आइदर इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट टेकिंग एडमिशन। ओके, तो कौन कौन एलिजिबल है मॉपअप राउंड के लिए? जो भी राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटेड हुआ बट एडमिशन नहीं लिए। सेकंड, अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटमेंट नहीं मिला देन यू आर एलिजिबल। अगर आप रजिस्टर नहीं किए फ्रेशर है देन आपको फ्रेशर होगा। रिमेंबर गाइस, अगर आप फ्रेशर है देन यू हैव टू पे द 1000 फी। ओके, अगर आप फ्रेशर नहीं है, ओके, मींस राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर कर चुके देन आपको 200 फी पे करना होगा। दिया था अबाउट द फी स्ट्रक्चर ऑल फॉर दिस थिंग्स। ओके, उन्होंने साफ साफ कहा कि WBJ 23 और JEE मेन कोई भी रैंक है, ओके, न्यू अगर रजिस्ट्रेशन करें तो आपको 1000 पे करना होगा। ओके, ऑल पार्टिसिपेंट प्रीवियसली रजिस्टर्ड न्यूली रजिस्टर्ड इन द मॉपअप राउंड विल हैव टू गिव देयर चॉइस इंस्टीट्यूट ब्रांचेस ऑफ फ्रेश। आपको फिर से मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, बट रिमेंबर गाइस मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राउंड 1 में अच्छा तो चॉइस फिलिंग करें ताकि मॉपअप राउंड तक नहीं आपको जाना पड़े। ओके, जिनको अगर ड्रॉप वगैरह लेना तो वो सब मॉपअप राउंड में जा सकते हैं बिकॉज दिस में भी रिस्की। ओके, मॉपअप राउंड का प्रोसेस क्या है भाई? देयर कैन बी डिफरेंट आउटकम्स ऑफ मॉपअप राउंड में आपको मिल सकता हो सकता है कि दो कैंडिडेट डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन राउंड 1 राउंड 2 और आपको अलॉटमेंट मिल गया मॉपअप राउंड में। ओके, देन you have to again do the same thing, physical reporting करना होगा by paying the 5000 rupees and all important things. So these are the complete process of the WBJ 23 काउंसलिंग। ये रिफंड विड्रॉल को अभी मैं बाद में बताऊंगा, बट आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि रिफंड विड्रॉल के लिए इस बार थोड़ा WBJ ने थोड़ा अपडेट किया है। ओके, But they are updated that after closing of all round of fee counseling, seat exclusion fee paid by candidates who completed the admission will be remitted to the admitted institute, which is to be adjusted with the tuition fee. क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका ट्यूशन फी से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इफ कैंडिडेट्स हैड पेड सीट एक्सेप्शन फी एंड करेंटली होल्डिंग अ सीट्स, अगर आपने सीट एक्सेप्शन फी कर लिया बट एडमिशन नहीं लिया देन आपको राउंड 2 में भाई आपको विड्रॉ करना होगा सीट्स को। अगेन गाइस आई एम सेइंग दैट राउंड 2 में आपको सीट्स विड्रॉ करना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर रिफंड। 5000 में आपको रिफंड नहीं करेगा जाएगा। अगर आप राउंड 2 में विड्रॉ कर लिए सीट्स को देन आपको 60 to 90 डेज में आपका रिफंड किया जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द रिफंड एंड विड्रॉल पॉलिसी। ओके, so these are the complete detail about the WBJ 23 counseling. I hope your all doubt is clear. फिर भी आपको कोई भी डाउट है feel free to ask here, and remember guys you can join my WhatsApp group, Telegram group for getting any updates related to that. And अगर आप चाहते हैं कि if you wanna get good college according to your rank, best college according to your rank, then you can fill up our WBJ counseling form.
Link will be provided in the description. I hope video informative to you. Till then, bye bye. Meet you in the next video. And remember guys, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे. जय हिंद.